Hello students, my name is Unnati Parmar, lecturer at Department of Computer Engineering, Aditya Silver Oak Institute of Technology in Silver Oak University. In previous video, we already discussed about basic concept of array. In this video, we will discuss more in array data structure and B array operations. Let's talk about array basic operation of array data structure. There are 5 basic operations of array data structures: traversal, insertion, deletion, search operation, and update operation. What is a traversal operation? This operation is used to print the element of array. Insertion operation, it is used to add an element at a particular index. Deletion operation, it is used to delete an element from particular index. Search operation, it is used to search an element using the given index or by the value. And update operation, it is update an element at particular index. Let's talk about insertion operation. In insertion operation, we are adding one or more element to array based on the requirement. A new element can be added at the beginning and or any given index of array. Let's talk about insertion operation algorithm. Insertion operation perform कैसे होता है उसका algorithm. The first step is to start, then second is create an array, a desired data type and size. Third step is initialize a variable I as a 0. Fourth step is enter the element at ith index of the array. Fifth step is increment I by 1. Sixth step is repeat step 4 and 5 until the end of the array. And 7 is stop. Now let's talk about one example of insertion operation. तो ये जो एग्जाम्पल है वो हम सी लैंग्वेज में परफॉर्म कर रहे हैं इंसर्शन में. तो सी लैंग्वेज के कोडिंग में हम फर्स्ट हमने डाल दी इसकी लाइब्रेरी स्टैडियो. देन हमने एक इंटीजर मेन करके फंक्शन क्रिएट किया है. देन अबाउट लेट्स टॉक अबाउट एरे इंसर्शन अल्गो. तो हमें एक क्रिएट करना है एरे विथ डेटा टाइप विथ साइज. तो इंटीजर डेटा टाइप से एरे करके हमने एक 3 साइज का एरे क्रिएट किया है इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, जहां पे हम यहाँ पे एलिमेंट ऐड करेंगे. इनिशियलाइजेशन के लिए हमने आई वेरिएबल ले लिया है जिसका डेटा टाइप भी इंटीजर है. अब हम प्रिंट करवाएंगे कि एरे बिफोर इंसर्शन. फोर लूप स्टार्ट होगी आई इज इक्वल टू 0 से. आई लेस देन 3 साइज तक जाएगा एंड आई प्लस प्लस होता जाएगा. प्रिंट एफ में हमने यहाँ पे एरे के नेम स्क्वायर ब्रैकेट में %d. तो %d जो है वो स्पेसिफायर है इंटीजर डेटा टाइप का जो स्टोर करेगा जो भी एलिमेंट इंटीजर के हैं उसको वहीं. उसके बाद प्रिंट करवाएंगे इंसर्टिंग एलिमेंट कि हम कौन से इंसर्ट करने वाले हैं. तो उसके लिए हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाया द एरे एलिमेंट आफ्टर इंसर्शन. और एक फोर लूप परफॉर्म होगी अब आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3 बिकॉज ऑफ साइज ऑफ एरे एंड आई प्लस प्लस. फोर लूप में हमने एल ए आई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स के एल ए 0 पे यहाँ पे परफॉर्म होगा 0 + 2 इज इक्वल टू 2. और ये तब तक होगा जब तक आई लेस देन 3 मतलब कि सेकेंड इंडेक्स तक नहीं चली जाती, तब तक ये आई प्लस प्लस चलता रहेगा. जो भी यहाँ पे परफॉर्म होगा एल ए आई इज इक्वल टू 0 मतलब कि एल ए 0 इज इक्वल टू 0 + 2 दैट मीन्स 2, वो प्रिंट होगा यहाँ पे एंड रिटर्न 0. तो इसका आउटपुट होगा इंसर्शन पे बिफोर इंसर्शन एल ए इंडेक्स पे 0 होगा जो 0 वैल्यू पे स्टोर होगा. 1 2 लेस देन 3 है तो वो 2 इंडेक्स तक जाएगा. उसके बाद इंसर्ट करने हैं एलिमेंट्स. तो हमने जो एलिमेंट्स दिए हैं तो वो 0 इंडेक्स पे 2 वैल्यू स्टोर होगी. क्यों? क्योंकि i इज इक्वल टू 0, i प्लस 2, तो 0 + 2 इज इक्वल टू 2. एल i इज इक्वल टू 1 है तो 1 इज इक्वल टू 1 + 2 दैट मीन्स एलिमेंट 3 होगा. i इज इक्वल टू 2, i + 2 तो 2 और 2 + 2 4.
तो ये हुआ हमारा इंसर्शन ऑपरेशन एरे डेटा स्ट्रक्चर का. Now, let's talk about the second operation of array data structure that is called deletion operation. हमने insert कैसे करना है एलिमेंट वो सीख लिया. अब हम सीखेंगे कि delete कैसे करना है. In this array operation, we delete an element from the particular index of an array. This deletion operation takes place as we assign the value in the consequent index to the current index. Now, let's talk about the algorithm of deletion operation. तो फर्स्ट स्टेप होगा स्टार्ट से लेके सेकेंड स्टेप में सेट ऑफ j इज इक्वल टू k. व्हाट इज k? तो k इज अ पॉजिटिव इंटीजर है और यही पॉजिटिव इंटीजर के जो सेट बनते हैं उसको हमने डिक्लेयर किया एज अ सेट ऑफ j. थर्ड स्टेप है रिपीट करना है हमें 4 एंड 5 स्टेप जब तक कि j की वैल्यू लेस देन n ना हो जाए. n होगा साइज ऑफ एरे. फोर्थ स्टेप में क्या परफॉर्म करेंगे? तो जो सेट ऑफ एल ए मतलब कि एरे की साइज जे से स्टार्ट होके जे प्लस वन पे अटकेगी, दोनों को इक्वल करेंगी. जे इज इक्वल टू जे प्लस वन, एन इज इक्वल टू एन माइनस वन एंड देन स्टॉप. सिक्स वाला स्टेप हमारा डिलीट एलिमेंट करने पे फोकस करेगा और उसके बाद स्टॉप. लेट्स टॉक अबाउट वन एग्जांपल ऑफ डिलीशन ऑपरेशन. तो हम ये प्रोग्राम भी सी में ही दिखा रहे हैं. तो सिंपली हमने डिक्लेयर किया फर्स्ट उसकी लाइब्रेरी, देन हमने डिक्लेयर किया void main हमारा फंक्शन. अब यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं एरे जो इंटीजर डेटा टाइप पे है. एरे का नाम दिया है एले, स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में हमने 3 एलिमेंट दिए हुए. जो प्रीवियस वाला कोड था उसमें हमें इंसर्ट करना था, उस रीजन से हम यहाँ पे साइज ऑफ एरे यहाँ पे दिखा रहे थे और यहाँ पे हम इंसर्ट अभी कुछ गया नहीं था. पर यहाँ पे ऑलरेडी जो एलिमेंट्स हो गए वहां में से हमें कोई स्पेसिफिक इंडेक्स वाला एलिमेंट डिलीट करना है. तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एलिमेंट्स होंगे. n इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स के साइज ऑफ एरे इज इक्वल टू 3. आई जो है इनिशियलाइज वेरिएबल जो 0 से स्टार्ट होगा. अब सिंपली हम वन स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं कि जो ओरिजिनल एलिमेंट्स है वो क्या है. तो ओरिजिनल एलिमेंट हमें कैसे दिखाने हैं? तो आई 0 से स्टार्ट होगा, 3 साइज मतलब कि एरे की साइज कितनी है 3, तो एन लेस देन तक जाएगा, आई प्लस प्लस करेगा, सिंपली वहां पे ये स्टोर करके दिखाएगा. अब जाएंगे फोर लूप में सेकेंड वाली की जहाँ पे हम डिलीशन परफॉर्म करने वाले हैं. आई इज इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट करेगा, लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस. तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू एल ए आई प्लस वन. यहाँ पे आई की वैल्यू हमने 1 लिया है तो एल ए वन इज इक्वल टू एल ए वन प्लस वन इज इक्वल टू 2. मतलब कि जो भी डिलीट करेगा, जो भी इंडेक्स स्पेस से एलिमेंट डिलीट होगा एरे में, वो वहां की इंडेक्स वैल्यू नल नहीं रखेगा जस्ट बिकॉज के एरे में नल वैल्यू नहीं होगी. तो वो जो भी इंडेक्स वैल्यू डिलीट होगी तो उसके बाद वाली इंडेक्स वैल्यू को वो आगे फॉरवर्ड कर देगा. चलो ये n इज इक्वल टू n माइनस वन, 3 की वैल्यू है तो 3 की वैल्यू 2 में चली जाएगी. अब प्रिंट करवाएंगे कि कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ है और कहाँ कैसे दिखेगा. तो सिंपली जो हमने ये वाली लॉजिक से परफॉर्म किया वो डिलीट होने के बाद हमारा एरे कैसे डिस्प्ले होगा, प्रिंट होगा. तो आई इज इक्वल टू सिंपली हमने जो पहले बिफोर डिलीशन के पहले परफॉर्म करवाई वही फॉर लूप हम यहाँ फिर से परफॉर्म कराएंगे कि डिलीट होने के बाद एलिमेंट कैसे रहेंगे. तो ये उसका आउटपुट है कि पहले हमने ओरिजिनल वाला जो एरे था उसमें हमने स्टार्ट किया था 0 से. आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, दैट मीन्स के 0 1 2 इंडेक्स में जाएंगे और उसके 3 एलिमेंट होंगी 1 3 5. अब हमने एल ए आई 1 पे लिया और 1 की 2 पे जानी है, मतलब कि एल ए वन इज इक्वल टू एल ए टू करना है, 3 वैल्यू हमें डिलीट करनी है. तो यहाँ पे हमने जो ये वाली लॉजिक परफॉर्म की, यहाँ से हमारी एल ए वन इज इक्वल टू 3 वाला जो परफॉर्म 3 वाली एलिमेंट थी वो डिलीट हो गई. पर जो सेकेंड वाली एल ए वाली वैल्यू थी वो 1 में स्टोर हो गई. यानी कि यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू सिक्वेंशियल ही जाएगी 0 और 1, पर जो 3 वाली वैल्यू हमने डिलीट की उसकी जगह वो सेकेंड इंडेक्स वैल्यू को 1 में स्टोर करेगा. So that is called deletion operation of array data structure. Now let's talk about third one,
एरे डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन में, बेसिक ऑपरेशन में, जिसका नाम है सर्च ऑपरेशन. Searching an element in the array using a key, and the key element sequentially compares every value in the array to check if the key is present in an array or not. सर्च ऑपरेशन सिंपली हमारे बनाए गए जो भी एरे में है वो में स्पेसिफिक इंडेक्स पर से हमें सर्च करके एलिमेंट देगी. लेट्स टॉक अबाउट सर्च ऑपरेशन के एल्गोरिथम पे. फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट. सेकेंड स्टेप में सेट ऑफ जे इज इक्वल टू वहां पे जीरो कंसीडर किया है. अब हमें थर्ड स्टेप ये बताया गया है कि हमें फोर एंड फिफ्थ हमें रिपीट करना है जब तक कि आई लेस देन एन एंड दैट इज साइज ऑफ एरे ना हो. फोर्थ स्टेप क्या है कि इफ एल ए की साइज जे जितनी होगी इज इक्वल आइटम आइटम देन गो टू स्टेप 6, यानी कि हमें प्रिंट करवा देना है. पर अगर नहीं हो रही है तो हम फिफ्थ स्टेप परफॉर्म करेंगे जो है सेट ऑफ जे इज इक्वल टू जे प्लस वन एंड 6 वन इज प्रिंट करवाएंगे जो हमने सर्च किया है एंड स्टॉप. लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ सर्च ऑपरेशन. एज वी नो कि हमने सी प्रोग्रामिंग में ये सर्च ऑपरेशन परफॉर्म किया है. तो फर्स्ट वन इज लाइब्रेरी, सेकंड जो है वो अपना वॉइड मेन फंक्शन है. फिर हमने एक एरे क्रिएट किया है इंटीजर डेटा टाइप से, एले नेम ऑफ एरे, स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में हमने 5 एलिमेंट्स लिए हैं. जो इंटीजर आइटम है इज इक्वल टू 5, इंटीजर आइटम है 1 3 5 7 8, साइज ऑफ एरे भी 5 है. आई एंड जे की वैल्यू हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो कंसीडर करेंगे. अब हमने सिंपल एक प्रिंटफ का एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाया है कि तो ओरिजिनल एलिमेंट्स कौन से होंगे. तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, वैल्यू एन तक नहीं जाएगी 5 तक, तब तक वो आई प्लस प्लस करता रहेगा. सिंपली हमने ऑलरेडी जो ये परफॉर्म किया है कि जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करके 5 इंडेक्स मतलब कि 4 इंडेक्स तक जाएगा और उसकी वैल्यू प्रिंट करवाएगा. नाउ यहाँ पे हम सर्च परफॉर्म करेंगे कि i इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करेंगे, n 5 तक जाएगा एंड प्लस प्लस जब कब तक ये फोर लूप परफॉर्म होती है कि इफ एल ए आई इज इक्वल टू आइटम होगी. आइटम हमारी 5 है, देख लो इंटीजर आइटम हमारी 5 है, उसमें से हम जो भी यहाँ पे डालेंगे वो इफ वो फाउंड होती है तो प्रिंट करेगा कि फाउंड एलिमेंट परसेंटेज बी. दैट मीन्स कि जो जो भी इंटीजर होगा वो यहाँ पे दिखाएगा एट द पोजीशन ऑफ इन परसेंटेज बी आइटम एंड आई प्लस वन. तो यहाँ पे पहले हमने जो ओरिजिनल ये वाली फोर लूप जो हमने परफॉर्म की ओरिजिनल एलिमेंट प्रिंट करवाने के लिए कि जीरो से लेके वो 5 साइज तक गया है, मतलब 0 1 2 3 4, और उसके एलिमेंट्स हमने बताए थे 1 3 5 7 8. अब हमने जो यहाँ पे परफॉर्म किया कि i इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन एंड आई लेस देन एन, जो भी हो लेस देन, हमने यहाँ पे परफॉर्म किया सर्च ऑपरेशन. तो जो यहाँ पे आई जीरो है, यस एन है और आई प्लस प्लस और जो भी आइटम होगी, तो यहाँ पे हमने फाउंड करवाया फिफ्थ. तो फाउंड एलिमेंट फिफ्थ एट कौन सी पोजीशन पे है, तो इंडेक्सिंग 2 यानी कि पोजीशन 3 पे. तो दैट इज कॉल्ड सर्च ऑपरेशन. तो हमने ये वीडियो में डिस्कस किए 3 ऑपरेशंस, इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्च. नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के ऑपरेशन देखेंगे. थैंक यू.